astrological day to all of you. And so a new week starts, and with new energy, we need to like face this week now. Of course, we have won the ICC Champions Trophy. ये बहुत बढ़िया बात हो गई. लेकिन इससे थोड़ी सी एनर्जी जितनी ज्यादा मिली है तुम्हें, तो अब उसे यूटिलाइज करेंगे हम ज्यादा पढ़ने में, रीडिंग करने में, ठीक है. एंड दिस इज मंडे 10th March, and we have the Monday idea to discuss. Of course, you know by now that the Monday idea is a little lengthy article, of course, and why we take it is to understand simultaneously the main idea, the complete topic that is being discussed there. Lengthy passage hota hai, lengthy article hota hai, तो उसका पूरा जितनी भी रिलेटेड चीजें होती है ना, वो चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स the vocabulary part also. So here we have the rough weather and the unsteady ship. इसी सेंटेंस से हमें समझ में आ जाता है कि ये एक मेटाफर है, ठीक है. अनस्टेडी शिप में पता नहीं किसकी नाव है, देखते हैं. यहाँ से समझ में आ जाता है नाव किसकी है और कहाँ की है. So rough weather, unsteady ship. Let's see what we have in the reading part. I'll be taking the main idea. Of course, we are going to discuss it simultaneously, and of course the words that appear here. So be prepared with your notebook and your pen ready. So heavy ships don't rock much. This is an analogy if applied to Maharashtra. मतलब ये एक heavy ships की बात हो रही है. अगर heavy ships होंगी तो इतने हिलती डुलती नहीं है, उसे rocking the ship कहते हैं. जैसे rocking chair कैसे होती है, ऐसे सीधे आगे पीछे घूमने वाली ऐसे. So that is a rocking chair. So heavy ships don't rock much. इतना हिलता डुलते नहीं है वो. ये एक एनालॉजी है, तो किसके लिए? इसका मतलब कि अगर सरकार बिल्कुल स्ट्रांग होगी तो ज्यादा अनस्टेबल अनस्टेडी नहीं होगी, ये होना चाहिए. But this analogy, if applied to Maharashtra's three-party Mahayuti government, doesn't quite work. पहले इसे मना कर दिया कि ये नहीं चलेगी यहाँ पर. Almost 4 months since coming to power, the strongest ever ruling combined in the state, with a strength of 235 in the 288 member assembly, is anything but steady. Anything with steady, ये मैंने पिछले कुछ दिन पहले बताया था कि but का यूज होता है something that is except. तो anything but steady का मतलब होता है कि steady होने के अलावा ये कुछ भी हो सकती है, पर steady तो नहीं है, ये समझ में आ जाता है. As the Devendra Fadnavis government presents its first budget today on March 10, it is lost on no one that the challenge to the BJP Shiv Sena NCP alliance is not from the opposition but from within. This comes up as one point. प्रॉब्लम कहाँ है? सरकार में ही प्रॉब्लम है, उसके ऑपोजिशन ने प्रॉब्लम क्रिएट इतना नहीं किया है जितना उसका इंटरनल प्रॉब्लम है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, दिस इज अनदर phrase you can say, lost on no one means जैसे बोलते हैं कि इस किसी के बारे में ऐसे दो राय नहीं है. मतलब yes, everybody is going to agree and see, be on the same page. You can use that idiom also, that the challenge to this BJP, Shiv Sena and NCP alliance is from within. Nobody is going to disagree to this part. ठीक है. और lost on no one का मतलब ये हुआ कि देखो, it is lost on no one that the challenge to the BJP in this is not from the vision. That means what? I'll repeat. Lost on no one would mean that everybody is going to understand it easily. अब ऐसा लिख लो, ठीक है. चलो अब हम आते हैं आगे. First, as yet unresolved issue that hit BJP, Shiv Sena, NCP government was regarding the constitutionally unrecognized posts of guardian ministers. Constitutionally unrecognized, that means this was not something that was given in the constitution or was according to what the constitution suggested. तो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके इन्होंने कुछ अपना नया काम किया था, जो कि गार्डियन मिनिस्टर्स हैं. Way back in 1972, the then Maharashtra Chief Minister Vasant Rao Naik had assigned some cabinet colleagues as point persons for underdeveloped districts to help accelerate their growth. ठीक है. एक ऐसे जैसे ना एक गार्जियन जैसे रख दिया उन्होंने ना, तभी इनका गार्डियन मिनिस्टर है कि ठीक है, ये वाला जो रीजन है या ये वाली जो विलेजेस हैं या एरियाज हैं, ये आपके देख रेख में होंगी. अब आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको जितना डेवलप बना सकते हो उतना बनाओ.
तो इसके लिए उन्होंने कुछ खास मतलब पर्टिकुलरली एक मिनिस्टर नहीं है, पर ऐसे कुछ मिनिस्टर्स रख दिए जिनको अपना अलग अलग एरिया दिया गया. Point, there's nothing wrong there, it was for the good only, right? But subsequently what happened, it became a practice to appoint a guardian minister for each district who de facto control the fund allocation and local development planning. तो each district के हिसाब से उन्होंने वो कर दिया. De facto is as the fact is. Nayak and a few chief ministers who followed ensured that no cabinet member was appointed as a guardian minister of his or her home district. ये था सबसे बड़ी बात. अपने ही एरिया के मिनिस्टर को अपने ही एरिया का गार्जियन मिनिस्टर बना लो, ऐसा उन्होंने साफ रखा कि देखो ऐसा नहीं होगा. ठीक है. हाउएवर हाउएवर मतलब ये ट्विस्ट आ गया. इसका मतलब हम यहीं से अभी समझ सकते हैं. अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जिस एरिया से ये मिनिस्टर है उसको उसी का गार्जियन बना दिया कि आप आपके एरिया में अच्छे से काम कर सकोगे. तो ऑफ कोर्स फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. So, like many good practices, this too was given the go by. Now, this sentence, you can infer so many things from here. ठीक है, सिंगल सा सेंटेंस है, बहुत सारी इसमें इन्फ्रेंसेस हो सकती हैं. इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ से, अगर हम इसको सीधा सीधा समझ लेते हैं, तो लाइक मैनी गुड प्रैक्टिसेस, दिस टू वाज गिवन द गो बाय. इसका मतलब ये हुआ कि गुड प्रैक्टिसेस काफी समय तक नहीं चलती हैं या तो नहीं फॉलो करते हैं लोग. राइट. ऐसे ही समझो, अगर आपने अभी रीडिंग कुछ शुरू किया है, तो रीडिंग एज अ गुड प्रैक्टिस यू शुड बी कंटिन्यूइंग योर, लाइक इट शुड बी फॉर एवर वाली बात होनी होनी चाहिए. रीडिंग तो ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए होनी चाहिए. लेकिन अगर ये आपने 2 4 6 महीने करके उसके बाद छोड़ दिया, तो दिस सेंटेंस स्टैंड्स ट्रू देन. राइट. So however, like many good practices, this too was given the go by. इसे भी जाने दो, गो बाय, चलने दो आगे. कुछ समय तक हमने नई प्रैक्टिस चला ली है, उसके बाद जाने दो. अब जाने दिया तो क्या हुआ, now ministers are assigned their home districts, putting them in a far more advantageous position. राइट. ये हो गया, उनको बेनिफिट मिल गया कि अब मेरे रीजन को आगे लेके जाना है, तो अब मैं लड़ूंगा, अब मैं बजट से पैसा अपने एरिया के लिए लूंगा. तो फिर लड़ाई हो गई ना उसमें. राइट. जो लड़ाई होती है ना, खींचातानी जो होती है, उसे जोसलिंग कहते हैं. ठीक है, ये खींचातानी हो गई. कैसे? मोर एडवांटेजेस पोजीशन हो गया विज विज द पॉलिटिकल राइवल्स. सो नाउ दे आर इन अ मोर एडवांटेजेस पोजीशन. अकॉर्डिंग टू, विज विज का मीनिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू their political rivals. This explains the no holds barred public spat between members of the three ruling parties, all jostling to guard their respective districts at the public's expense. ये हो गया उनके बीच का झगड़ा. किसके लिए? पैसों के लिए. क्यों? क्योंकि उन्हें गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया है अपने अपने एरिया के, तो जहां के हैं वहीं के मिनिस्टर भी बन गए, गार्जियन भी बन गए. Now what? Now it will be like एक ना competition जैसे. So they're not considering the whole state as their own. No, now they are considering like being narrow minded and considering their district only as their own. तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो इतना नैरो जाके सोचना और इसके हिसाब से काम करना इज गोइंग टू लाइक नॉट गोइंग टू हेल्प द मैक्रो थिंग. राइट. पूरी तरीके से महाराष्ट्र को बेनिफिट होना चाहिए, नहीं. अब महाराष्ट्र की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जा रही है नुकसान में. क्यों? क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो गार्जियन मिनिस्टर है, सो टू से, इज फाइटिंग, jostling to guard the respective districts, but at the public's expense. Now, the situation turned so ugly that Fadnavis was compelled to stay some of the appointments, compelled to stay some of the assignments. मैंने ऐसे stay order दे दिया ना, जो होता है कि ठीक है अभी रुको, अभी मैं और अपॉइंटमेंट नहीं करूंगा, या ऑर्डर उन्होंने फिर आगे नहीं सेंड किए. He was forced to do it, but the damage had been done. प्रॉब्लम तो हो चुकी थी. क्या? Not only did the issue expose cracks in the ruling combine, it also highlighted the fragile unity amongst the three parties running the state. ठीक है. अब इससे क्या हुआ, तीन का जो ये बना है, अलायंस बना है, उसमें से जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे गए मिनिस्टर्स,
उनमें से वो अपने अपनी तरफ पैसा ज्यादा लेने लगे। अब आपस में ही एक दूसरे को राइवल मानने लगे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, क्या दिखा इसमें से, दैट दिस इज वेरी फ्रेजाइल यूनिटी। सो दिस कैन बी कंक्लूडेड, what can be concluded, that this combine, जो फर्स्ट पैराग्राफ में वर्ड कंबाइन आता है ना, तो ये कंबाइन इतना स्ट्रांग नहीं रहा, नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों हिस्से जिनको मिला के ये पूरी गवर्नमेंट बनी थी, वो धीरे धीरे ऐसे क्रैक्स आने लगे हैं उसमें। ठीक है, सो इट इज अ फ्रेजाइल यूनिटी amongst the three parties running the state. It also painted the sulking Deputy Chief Minister Eknath Shinde, who could barely hide his displeasure, in poor light. I've written this in blue. Painted in poor light आपका एक फ्रेज हो जाता है, इडियम हो जाता है। ठीक है, पेंटेड इन पुअर लाइट का मतलब उसके लिए भी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के लिए भी लोग, उनका इमेज इतना अच्छा नहीं रहा अब। राइट, वाई ही वॉज सल्किंग, सल्किंग इज अ मुंह फुला के बैठना, उसे सल्किंग कहते हैं। राइट, टू शो डिसप्लेजर, दैट इज सल्किंग, राइट, नॉट हैप्पी विद द ट्रीटमेंट दैट ही इज गेटिंग। और जैसे कोई पार्टी में गए और अगर आपको नहीं मिला वैसा वेलकम या वैसा पार्टी में ट्रीटमेंट नहीं मिला, उस तरीके से आप जैसे बैठोगे ना मुंह फुला के एक कोने में पार्टी के, नॉट एंजॉइंग द थिंग्स, वैसा होता है, उसे सल्किंग कहते हैं। राइट, सो इट पेंटेड दिस पर्सन इन पुअर लाइट, displeasure वहां पे दिया ही है। Then came the Dhananjay Munde episode that badly dented the government's image. So now see, he is coming up with a point and then he is gradually coming up with the sub points leading to the central idea. तो अपने आप वो पूरा उसका मतलब, एक कोई भी, आप ये समझो, कोई भी आर्टिकल को लेंदी बनाना, या तो आप बहुत कुछ दे रहे हो उसमें इंफॉर्मेशन, या तो आप इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हो। That's it, and therefore the article becomes a lengthy one then. So here also he is coming up with all the reasoning. Now this episode, another episode. एक तो यहाँ पे हो गया इन्होंने क्या किया, ठीक है, और ये उसका रीजनिंग हो गया कि एक्चुअली हुआ क्या था गार्जियन ministers ka. Now, after a 3-month drama, he finally resigned from the cabinet last week. Munde, a former BJP leader and nephew of late BJP veteran Gopinath, had played a crucial role in bringing Ajit Pawar, the powerful nephew of Sharad Pawar, closer to the BJP. Had played a crucial role, important wala, theek. Until last week, he was considered indispensable to Ajit and his NCP. Until last week, तो ऐसे लास्ट वीक ऐसा क्या हुआ जो उसको हटा भी दिया गया? राइट, अभी तो इसने किया ना, he finally resigned. So he was considered indispensable, you cannot do without. So when a close aide of Munde from Marathwada was implicated in the murder of Sarpanch Santosh Deshmukh, the BJP leadership initially tried to look the other way. Initially यानी शुरुआत में क्या किया, तो जब इनके कलीग हैं, क्लोज एड हैं, ठीक है, अगर उनको इम्प्लीकेट किया गया, उनके ऊपर ब्लेम है, सस्पिशन है कि ये किसी की हत्या में से रिलेटेड है अगर, ठीक है, सो मर्डर ऑफ सरपंच संतोष, जरा सा भी अगर आ गया, ऐसा कोई ना कोई इंडिकेशन अगर आ गया, तो देन व्हाट डिड द बीजेपी डू एट द सेंटर? इट टर्न्ड इट्स वे, इट टर्न्ड इट्स लुक, ठीक है, लुक अवे, लुक द अदर वे, कुछ भी आप बोल सकते हो, तो उन्होंने नजरअंदाज कर ली, नजर घुमा दी, ये हो जाता है। However, the local BJP MLA's relentless attacks and media exposes of Bunde Jr. finally compelled Fadnavis to seek his resignation. उनको रिजाइन करना पड़ा, तो 3 महीने के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। There is now a clamor for the resignation of another minister, Manik Rao Kokde, also belonging to the Ajit Pawar-led NCP, following his indictment by a local court in a cheating case. ठीक है, अगेन हमारे पास वही वर्ड आ जाता है, इंडिकमेंट है, इम्प्लीकेटेड है। ठीक, सो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको कहीं ना कहीं उनका वो आ गया है पॉइंट कि कहीं कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इस केस से, तो जहां एक कनेक्शन मिला, ब्लेम आया, तो इनको हटा दिया। यहाँ पर एक और ब्लेम आया, विद वन मिनिस्टर फोर्स्ड टू क्विट, ये रहे, एंड अनदर लाइकली ऑन हिज वे आउट, ये भी धीरे धीरे बाहर ही चले जाएंगे। सिचुएशन हैज एक्सपेक्टेड
completely rejuvenated the opposition. अब सोचो, जो रूलिंग है उनमें से एक बाहर चला गया, दूसरा बाहर जाने के रास्ते पे है, तो फिर कौन खुश होगा? या ऑपोजिशन को क्या होगा, मतलब क्या असर पड़ेगा? राइट. सो इफ इवन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ रेजुविनेशन, we can understand that yes, they are going to be revived, re-energized. उनको फिर से एनर्जी मिल जाएगी कि हाँ नहीं, अब अपन कर सकते हैं कुछ आगे. जो रूलिंग थी पार्टी, उनके दो लोग तो हट गए, तो ऑपोजिशन को थोड़ी सी और ताकत आ गई कि हाँ, दो लोग तो हट गए, बाकियों को भी हम हटा सकेंगे, ये सोच के थे. राइट. Again, in this sentence, you can come up with many inferences, you can come up with many assumptions. ये ऐसा sentence है, ऐसा situation है. It rejuvenated the opposition में assumptions अगर आप देखते हो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि now the ruling party has become weak. According to the opposition, the party has become weak. Why? Because now it opposition is reviving and getting energy. तो एक पार्टी जब कम हो जाती है, लेस स्ट्रेंथन हो जाती है वो, ये वाली पार्टी स्ट्रेंथन हो जाती है. दिस इज व्हाट द कनेक्शन बिकम्स देन. Now the ramifications go beyond politics as these issues along with regular rumblings seem to have impacted the state government's efficacy, with Fadnavis being forced to intervene in altercations between alliance partners. ठीक है, अब देखो पूरा हिसाब समझ में आ गया कि कौन बाहर जा रहा है, किसके ऊपर क्या इल्जाम लगा है, ये सब तो आ गया हमें समझ में. All this is the reasoning that is leading to the main idea that see there's a disturbance here and Fadnavis has a very strong role to play now. There are quite many challenges in front of him. So this is another thing. The same sentence, ramifications are the consequences, the effect, the impact. आगे बढ़ के ये मतलब सीक्वेंस कैसे चलेगा इस इवेंट्स का. ठीक है, तो रैमिफिकेशंस एक्चुअली होते हैं ना, ब्रांचिंग आउट होता है. जैसे ये कॉज है, ठीक है, इसके इतने अगर मैंने इफेक्ट कर लिए, ठीक है, लेकिन हर इफेक्ट अल्टीमेटली जाके कॉज भी बन जाता है, विच इज लीडिंग टू अनदर सेट ऑफ इफेक्ट्स देन. राइट. तो ये मल्टीपल टायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट्स जो होते हैं ना, ये हो जाते हैं रैमिफिकेशंस. ठीक है, अल्टीमेटली इसका इस इफेक्ट का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होने वाला है. तो दिस इज लाइक ब्रांचिंग आउट. ठीक है, मल्टी टायर्ड कॉज एंड इफेक्ट जब चलता है ना, उसे रैमिफिकेशंस कहते हैं. मतलब सोचो ट्रम्प जीत गए, ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की कुछ बात की, उसके हिसाब से फिर आगे क्या क्या उसका नतीजा हुआ, क्या क्या इवेंट हुआ, क्या क्या इफेक्ट हुआ, उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट इंडिया की ट्रेड पे क्या पड़ेगा, तो फिर उसके आगे की चेंजेस होंगी. तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. Right. In this way, it becomes a ramifications. Now, whatever he mentioned here in the previous paragraph, right? So ramifications, he said, goes beyond politics. It is not only about the alliance, it's not only about the politics side, but then he says that see these issues along with the regular rumblings. A few days back we did that word rumbling. Rumbling का मतलब होता है ना इसकी बादलों के गरजने की जो आवाज होती है, थंडर की जो आवाज होती है ना, गुड़गुड़ जिसे कहते हैं ना, वैसे वाला जो हो जाता है. इज इज अनदर एग्जांपल ऑफ द वर्ड ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया. ठीक है, तो वो रंबलिंग्स हो जाती हैं. सीम टू हैव इम्पैक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट्स एफिकेसी. अब सिर्फ पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा नहीं, गवर्नमेंट की एफिकेसी, एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी, बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ता है. So much so that Fadnavis was forced to intervene. ठीक है, उन्हें दखल अंदाजी करनी पड़ी. इंटरवीन यानी बीच में उन्हें कदम या लगाम अपने हाथ में लेनी पड़ी. किसके बीच? ऑल्टरकेशन यानी झगड़े. ठीक है, बिटवीन अलायंस पार्टनर्स. तीन थे. With public displays of incompatibility, the Maharashtra government looks far from being united in governance and as a result yet to get down to business. Far from being united in governance का मतलब ये जो दिख रहा है कि ये तीनों की पार्टी कंबाइन होके कुछ बनी है, तो ये फ्रेजाइल यूनिटी है, ये एक साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्रैक पड़ गए हैं इसमें. So Fadnavis is now like he has to solve these internal issues also, and only then he can come up with something positive for his state.
तो ये प्रॉब्लम है। गेट डाउन टू बिजनेस मतलब अभी तक इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, क्योंकि अब जाके वो बजट पेश करने वाले हैं, किए हैं उन्होंने। हाउ बैड इज द सिचुएशन? One can only guess from Fadnavis's recent statement made to assure the investors that political extortions won't have any place in his government. Extortions is like force, कि political force नहीं चलेगा न उनको, uh, neither will they give in to all this force, right? So what was he doing? He was trying to assure the investors कि ये सब नहीं चलने वाला है. For Fadnavis knows how precarious the state finances are. Precarious is dangerous. ठीक है, dangerous आप कैसे relate कर सकते हो इस word को? देखो, how will you keep this in mind? Precarious situation होती है, तो ऐसी situation जहां पर हमें प्री केयर लेना होगा, मतलब पहले से ही केयरफुल रहना पड़ेगा, तो देन यू कैन कॉल दिस सिचुएशन अ प्रिकेरियस सिचुएशन. ठीक है, समझ के देखोगे. व्हाट आई एम गिविंग यू इज ओनली अ निमोनिक टू कीप दिस इन माइंड और रिटेन दिस वर्ड इन योर माइंड. ठीक है, प्रिकेरियस मतलब प्री केयर, तो आप पहले से ही केयर क्यों लोगे? क्योंकि वो डेंजरस सिचुएशन है, तो प्रिकेरियस का मीनिंग डेंजरस आ गया. वैसे ही हजार्डस हो जाता है. ठीक है, हजार प्रॉब्लम्स होंगी जहां पर, तो वो हजार्डस सिचुएशन हो गई ना, हजार वर्ड आ गया हमारे पास, तो दोनों का मीनिंग हो जाता है डेंजरस. प्रिकेरियस, हाउ प्रिकेरियस द स्टेट फाइनेंसेस आर. डेंजरस ऐसे नहीं कि स्टेट फाइनेंसेस जैसे खतरनाक है, खूंखार है, वो नहीं. ऐसी डेंजरस सिचुएशन में है कि हमें उस पर ज्यादा केयर देना बहुत जरूरी हो जाता है. So it is how precarious the state finances are. Maharashtra's debt mountain is close to rupees 8 lakh crore with a fiscal deficit of rupees 1 lakh crore. In addition, the state is staring at an outgo of rupees 46,000 crore this fiscal, thanks to the Ladki Behan scheme announced ahead of the elections. बढ़िया, तो उन्होंने schemes तो announce कर लिए इलेक्शंस के पहले, तो इतना इतना पैसा तो अभी बाहर जाने का है, इतना डेफिसिट है. ठीक है, तो अगेन डेटा इज बीइंग गिवन टू यू. Now, in the last 2 years, Fadnavis's predecessor Shinde had gone into overdrive, announcing one popular scheme after another. Shinde's intention was to prove that he is not an accidental chief minister and that he can get the combined re-elected. Although he succeeded in his mission, मतलब हाँ लोगों ने सोचा चलो बढ़िया है ऐसा, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? The state ended up footing the bill. फुटिंग द बिल का मतलब बिल आखिर पे करना किसे पड़ा ना, एंड में साइन किसने करनी पड़ी बिल पर, ये है फुटिंग द बिल. डिस्पाइट प्रूविंग इज मेटल. मेटल मींस यस योर कैलिबर, किस मिट्टी के बने हो, वो मेटल मिट्टी से रिलेट कर सकते हो. ठीक है, तो आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटी, your caliber, what you are, and what you have the potential to be or to do, that all he proved, coming up with so many schemes, right? He was right in doing that also. But despite all that, Shinde was relegated to the post of deputy CM, sharing it with Ajit Pawar, while his former deputy Fadnavis became the leader of the three-party coalition. A few of you would not be able to understand what is going on, लेकिन ये आर्टिकल ऐसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में या अपनी ही कंट्री में हो क्या रहा है आखिर, राइट? How these things are analyzed, how these things would like reflect in some other action taken by the government. तो ये बैकग्राउंड बिल्डिंग हमें करनी ही पड़ती है, तो हमें आगे की चीजें और समझ में आने लगे. ठीक है, Fadnavis's biggest challenge now is ending all financial profligacy and bringing Maharashtra back into the reckoning. Now, see, if I don't know what is profligacy, no problem. But what were we talking about? We were talking about this extra money that this person or this government has to spend. So Fadnavis entering the government at the helm at this point, what will his biggest challenge be? कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है उसे खत्म कर दो.
ठीक है, तो प्रोफ्लिकेसी क्या हो गया? एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा वेगन्स, राइट? या तो दो चीजें हो सकती है, या तो एक्स्ट्रा वेगन्स होगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर खत्म करो, या तो वेस्टिंग खत्म करो। अब पैसा वेस्ट मत करो, तो जहाँ है सोच समझ के चलाओ, राइट? तो यू नीड टू बी जुडिशियस इन दिस। व्हाट डिड दिस पर्सन डू? उसने अपने हिसाब से सारी स्कीम्स ओपन कर ली, अच्छा भी था, स्कीम्स भी अच्छी थी, पर फिर करना क्या पड़ा? अब गवर्नमेंट को ही स्पेंड करना पड़ेगा उस पर। With signs of an industrial sector slowdown and Mumbai's much touted services sector looking worn out, Maharashtra is in search of the missing investment. ठीक है, looking worn out का मतलब होता है थक गए, exhausted. तो सर्विसेज सेक्टर इसका एग्जॉस्ट हो गया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना अच्छा नहीं चल रहा है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया है। तो अब क्या करना है? एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो मिसिंग है। Although Fadnavis is seen making every possible effort, the rupees 15 lakh crore investment agreements he signed in Davos last December are yet to materialize on the ground. तो ये जो है इन्वेस्टमेंट आने का है, अभी हकीकत में बनना बाकी है। हाउ डॉन्टिंग इज द टास्क बिफोर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? क्वेश्चन मार्क। अब देखो, डॉन्टिंग का मीनिंग अगर नहीं आता है तो ये रहा चैलेंज, क्योंकि बात तो वही हो रही है ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये जो थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, जो भी चेंजेस हुई हैं, इससे फडणवीस जी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो आसान होगा क्या? वो नहीं। डॉन्टिंग इज समथिंग दैट इज कॉजिंग फियर। How daunting is the task before the Maharashtra government? A comparison with Tamil Nadu can explain. Once far behind Maharashtra, Tamil Nadu, which is half its size, has overtaken the richest state in per capita net state domestic product. Although Maharashtra with rupees 42.67 lakh crore GSDP tops the list, its per capita GSDP is rupees this much. अब a Tamilian today is relatively richer than. ठीक है, तो हमें इतना डेटा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो TN is richer than MH, इतना हमें बस ध्यान में रखना है। तो ये तो सिर्फ बता रहे हैं इधर। प्रॉब्लम वही है अभी, फिजिकल प्रॉब्लम, जो फडणवीस के सामने चैलेंज बन के खड़ी है। With the going getting increasingly tough as more and more states get competitive, Maharashtra can ill afford its business as usual attitude. इसका मतलब महाराष्ट्र को business as usual attitude पे नहीं जाना चाहिए। If you remember, ये वाला टर्म हमने पिछली बार जब ट्रम्प और इंडिया की रिलेशंस की बात हो रही थी, ट्रम्प ने जितने फेरबदल किए हैं टैरिफ्स में और ट्रेड में और इन सब में, उसके हिसाब से वो आर्टिकल में आया था कि इंडिया का बिजनेस एज यूजुअल एटीट्यूड नहीं चलने वाला है। तो इंडिया को भी उसका कुछ ना कुछ रेसिप्रोकल जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। In that way, this term had been used, if you remember, and if you read and listen to it daily, तो पता चलेगा why I mentioned this, कि हमने ये कर लिया है 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, क्योंकि वो अपने आप फेमिलियर लगते हैं वर्ड्स, ये आपकी आदत पड़ेगी फिर। No one knows this better than Fadnavis, the man in the hot seat. यहाँ से the man in the hot seat एक्चुअली में तो वो नहीं है, मेटाफोरिकल यूज है ये तो। हु इज द मैन इन द हॉट सीट? द पर्सन हु इज फेसिंग ऑल द हीट, द पर्सन हु इज कन्फ्रंटिंग, हु इज फेसिंग ऑल द ट्रबल्स, और हु इज वेयरिंग द ब्रंट। ये हो सकता है जिसके सामने इतनी सारी चैलेंजेस है, वो हो सकता है। तो हॉट सीट पे तो वो बैठा है। His government's first budget today will test his navigation skills as well as his ability to steady the large ship he is in charge of steering. To steady the large ship he is in charge of steering, we again see the author is using this analogy. इसे हम analogy कहते हैं, metaphorical use मैंने कहा है, शुरू में भी metaphorical कहा था। क्यों? क्योंकि analogy के दो रूप होते हैं, एक simile और एक metaphor। ठीक है, और ये अगर आपको पता है तो सिमिली में एज या लाइक आता है, और मेटाफर में वैसे का वैसे ही कहा जाता है, इज और वॉज का यूज होता है फिर। ठीक है, so let's see the main idea now. Main idea and vocabulary words we discussed along with the article. So now directly to the main idea. A tough test for Devendra Fadnavis, ठीक है, ये कैप्शन भी हो सकता है, ये एसेंस भी हो सकता है, ये टाइटल भी हो सकता है। Mere months after historic mandate,
Bickering between the three Mahayuti partners and recent scandals have impacted the efficiency of the Maharashtra government. देखो, उन्होंने efficacy की बात की थी कि ramifications क्या होगा, चैलेंज इनके सामने है और क्यों। उसने जो पूरा पैराग्राफ बना दिया था दो मिनिस्टर्स के लिए कि एक को इम्प्लीकेशन, एक के ऊपर इम्प्लीकेशन था, ठीक है, इंडिक्टमेंट वाला जो वर्ड था, ठीक है। तो this central idea is easily wrapped up in this word scandals. वो पूरा आर्टिकल का जो पैराग्राफ था दैट इज स्कैंडल्स। इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, एफिशिएंसी इज बीइंग अफेक्टेड, राइट। एंड देन जस्ट मंथ्स, मेयर वर्ड से ही पता चला कि अभी कुछ समय पहले ही तो आए थे, 3 महीने तो हुए हैं। तो कंबाइन जो है ये बिखरता हुआ दिख रहा है। ये बिकरिंग आपस में, नैगिंग जैसे कहते हैं ना, दे वुड बी लाइक नैगिंग और बिकरिंग ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कुछ बोलना। तो ये जो हो रही है ना, एक दूसरे का खींचातानी जो हो रही है, प्रॉब्लम जो हो रही है, इससे गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और एफिकेसी इम्पैक्ट हो रही है। दिस टर्न्स आउट टू बी द मेन आइडिया देयर। हियर दिस इज द मेन लाइन यू कैन से, ramifications go beyond politics, ये जो आप अंडरलाइन कर सकते थे वो है ramifications का इफेक्ट्स आपने कर लिया था, पूरा समझाया था मैंने। और ये सिर्फ पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं है। रेगुलर रमलिंग सीम टू हैव इम्पैक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट्स एफिकेसी, देखो ये हो गया मैच यहाँ से, with the Fadnavis being forced to intervene in altercations between alliance partners, altercations between alliance partners के लिए bickering word आ गया। So three parts that are given in this main idea, ये एसेंस या टाइटल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द लाइन दैट यू कुड हैव मार्क्ड फ्रॉम विच वी गेट द मेन आइडिया, राइट। आई होप यू हैव बीन एबल टू डू इट and understand how to do it also. Now for more articles to read, एक आर्टिकल तो काफी लेंदी हो गया, लेकिन सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा ना। अभी तो हमें मतलब स्टार्ट करना है, अभी पिछले हफ्ते से एक आर्टिकल और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। सो एम्पावरमेंट ऑफ इंडियाज वुमेन विद बोल्ड पॉलिसीज, 8th ऑफ मार्च का जो वुमेन्स डे था उसके हिसाब से अपने पास कुछ और समझ में आ जाएगा, तो एक अलग टॉपिक होगा ये। क्लोजिंग द जेंडर गैप इन द हायर जुडिशरी, राइट। ये इसमें विमेन प्लस लॉ दोनों तरीके से आ जाएंगे, इसका जॉनर वैसे हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम द हिंदू, द फर्स्ट वन इज आल्सो फ्रॉम द हिंदू। व्हाट डज एनईपी 2020 स्टेट अबाउट लैंग्वेज, ये जो पूरा इतना अभी तक चल रहा है तमिलनाडु और ये लैंग्वेज को लेके जो बात चल रही है, उसके हिसाब से एनईपी 2020 तो थोड़ा ये एजुकेशन बेस्ड हो जाएगा। What Delhi must do to rescue the Yamuna, Hindustan Times का आर्टिकल है। So this will be environment, this is education, this is legal, and this becomes society plus पॉलिटिक्स हमने कर लिया आज। तो आपके पास 5 टॉपिक्स हो गए, 5 जॉनर्स हो गए। आप ये डेफिनेटली पढ़ ही लेना। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एंड दिस इज अ नाइस आर्टिकल। ये भी एक कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब आप थोड़ा बहुत तो समझ ही जाओगे, इसमें थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ समझ सकते हो आप उसमें से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So thank you and stay logical, stay positive, and be logical and be positive always. See you.